Jeremy Bentham was an English philosopher, and he's also regarded as the founder of modern utilitarianism. He was one of the major social reformer, we can say, who talked about individual and economic freedom, where when the time of these things were not common. He talked about equal rights for women in voting and divorce, and he also talked about decriminalizing of homosexual acts. He also called for the abolition of slavery, of the death penalty, and of physical punishment, including that of children. And he was also one of the early advocate who talked about animal rights. So today we have Miss Anjali Shrivastava. She is an student of MA Political Science from Lucknow University. I welcome you, Anjali. Now the floor is yours. You can start. थैंक यू पल्लवी एंड सर पहले स्क्रीन शेयर कर दें. तो आवाज़ क्लियर है? पल्लवी, Yes, yes, you are आवाज़. audible. You can start. ओके ओके, थैंक यू. Very good evening to all of you. First of all, I would like to say thank you so much, sir, for providing me this stage. तो जैसा कि पल्लवी ने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि आज का टॉपिक हमारा है जेरेमी बेंथम. सो हु इज जेरेमी बेंथम? सो जेरेमी बेंथम was an English philosopher, jurist and social reformer. उनका जन्म 1748 लंदन इंग्लैंड में तथा मृत्यु 1832 में हुई. पेशे से वो एक लॉयर थे, बट कभी भी लॉ की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिलोसफी ऑफ लॉ पर था. Jeremy Bentham gave up the practice of law and engaged himself in the study of jurisprudence and legal philosophy with a view to the reconstruction of the entire legal system. बेंथम जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, यूरोप ब्रिटेन का जो टाइम पीरियड था वो इनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर था. इस वक्त यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड काफी चेंजेस हो रहे थे, जिनसे बेंथम काफी प्रभावित थे और वो भी इन रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने अपने फिलॉसफी के थ्रू ब्रिटेन में लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए. अपनी फिलॉसफी के माध्यम से बेंथम पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ साइंटिफिक बेस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से जोड़ने की बात करते हैं. बेंथम को फादर और द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है. ही वाज अ फाउंडर ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म. अब हम बात करेंगे कुछ वर्क्स की. So, as an author, Bentham was very careless about the form in which his writing appeared. He wrote extensively but never organized his work. Bentham अपनी पूरी लाइफ भर कुछ ना कुछ लिखते ही रहे. उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिक, पनिशमेंट, जस्टिस, एजुकेशन, चर्च, लैंग्वेज, लोकल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ लिखा है. इनके कुछ वर्क एंड बुक्स हैं जो पब्लिश हुए, वो इस तरह हैं. Fragment of Government 1776, Defense of Usury 1787, Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1789, Emancipate Your Colonies 1783, Essay on Political Tactics 1791, Catechism of Parliamentary Reforms 1809, Discourses on Civil and Penal Legislation 1802, The Principles of International Law, ये इनका essay है. Bentham's Radical Reform Bill 1817, Constitutional Code 1830, Anarchical or the Books of Fallacies 1824. तो जो इनकी फर्स्ट एंड थर्ड बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन बेंथम के जितने भी थियरीज हैं, व्यूज हैं, वो सब इन दोनों में ही समाहित है. इन सब में वर्णन किया गया है इन दोनों में. His first published work is known as Fragment on Government, and the greatest on which his fame rests is the Introduction to the Principles of Morals and Legislation. अब हम बात करेंगे उससे पहले फिलोसफी, थ्योरी एंड आइडियाज ऑफ जेरेमी बेंथम क्या क्या है आज जिनके बारे में हम बात करेंगे. उसकी आउटलाइन कुछ इस तरह है. व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म?
Then Bentham's utilitarianism theory of utility. इसके अंदर utility define importance of utility, principle of utility, classification of pleasure and pain theory, type of sanctions, measuring utility, the felicity calculus, the greatest happiness principle, main features of Bentham's utilitarianism, Bentham's view on state, Bentham's view on government, natural right, punishment and prison reforms, view on education, legal and administrative reforms, and other aspects like private property and women and gender equality. इसके बाद critical analysis के बाद हम contribution की बात करेंगे. So, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि what is actually utilitarianism. So, utilitarianism is an influential philosophy related to state function propounded by the philosophers of England in the 19th century. बेसिक आइडिया जो यूटिलिटेरियनिज्म का है वो है यूटिलिटी. Utilitarianism is a theory of morality which advocates actions that foster happiness or pleasure and opposes actions that cause unhappiness or harm. Utilitarianism can be studied in two forms, moral and political. As a moral principle, it can be called universal hedonism, सार्वलौकिक सुखवाद. इस रूप में ये सिद्धांत एपिक्यूरियस की फिलॉसफी से संबंधित है. बट करंट हेडोनिज्म इज डिफर्स फ्रॉम ग्रीक हेडोनिज्म, जहां ग्रीक का हेडोनिज्म एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी है, वहीं वर्तमान का हेडोनिस्टिक ईगोइस्टिक अहमवादी है, ऐसा बोला जाता है. दिस इज अ थ्योरी विच एडवोकेट्स ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. मीन्स ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित सिद्धांत है. यूटिलिटेरियनिज्म would say that an action is right if it results in the happiness of the greatest number of people in a society or a group. जैसे कि साइड में आप थिंकर्स देख पा रहे हैं, थिंकर्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें जेरेमी बेंथम 1748 to 1832, सेकंड जेम्स मिल 1773 to 1836, थर्ड जॉन ऑस्टिन 1790 to 1859, फोर्थ जॉर्ज ग्रोव 1794 to 1871, जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 to 1973 एंड अलेक्जेंडर बेन 1818 to 1903. इसमें जेरेमी बेंथम का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा रहा है, इसलिए एंड जॉन स्टुअर्ट मिल का भी, इन दोनों का ज्यादा फोकस रहा है यूटिलिटेरियनिज्म पर. इसलिए अब हम बात करेंगे बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी की. तो ही डिस्कस्ड दिस प्रिंसिपल इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन. बेंथम अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन के शुरुआती पन्नों में लिखते हैं, जिसे फंडामेंटल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, कि में लिखते हैं, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, फर्स्ट प्लेजर एंड पेन. एंड यही दो सॉवरेन मास्टर्स प्लेजर एंड पेन डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए. पूरी की पूरी फिलॉसफी बेंथम की इन्हीं दो प्लेजर एंड पेन में केंद्रित है. अब बेंथम बोलते हैं कि right action result in good or pleasure, wrong actions result in pain और absence of pleasure means वो सभी काम जो एक्शन वो कभी इस सभी काम और एक्शन सही हैं जो हमें खुशी की अनुभूति कराते हैं, और वो सभी काम या एक्शंस गलत हैं जो हमें दुख का अनुभव कराते हैं. बेंथम की थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म प्लेजर को मैक्सिमाइज मीन्स बढ़ाना चाहती है और पेन एंड सफरिंग को मिनिमाइज करना चाहती है. He gave more emphasis was given to individualism. Means Bentham कहते हैं human beings are basically pleasure seeking and pain avoiding animals. We do those things which give us pleasure and avoid those which gives us pain. इसे हम बेंथम की प्लेजर पेन थ्योरी कहते हैं. इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताएंगे. इससे पहले बेंथम यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं उसकी चर्चा करते हैं. यूटिलिटी डिफाइन बाय बेंथम. According to Bentham, the hedonistic doctrine states that every action of man is motivated by the desire to obtain as much pleasure as avoid as much pain as possible. And there are two doctrines of Bentham. First is psychological hedonism and second is ethical hedonism. Psychological hedonism क्या है? Psychological hedonism explains how people actually behave
ये थ्योरी डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है कि लोग कैसा बिहेव करते हैं। लोग जो भी करते हैं प्लेजर के लिए करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। Human actions are motivated by the desire to enjoy pleasure or minimize pain, and enjoyment of pleasure or prevent pain is the only rational aim of human action. सेकेंड एस्पेक्ट इनका जो है वो है एथिकल हेडोनिज्म, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी ऑट टू डू। ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट प्रिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट है। दिस इज एन एक्शन should have an overall tendency to promote the greatest amount of happiness. ये सब बैंथम के बेसिक assumptions थे कि man is basically a pleasure seeking and pain avoiding animal. अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनका डिस्कस करेंगे। बैंथम के अकॉर्डिंग हर वो एक्टिविटी सही है जिसके द्वारा हमें प्लेजर और हैप्पीनेस प्राप्त होता है, और हर वो एक्टिविटी जो हमें प्लेजर हैप्पीनेस देने में सक्षम नहीं है, पेन अनहैप्पीनेस को बढ़ावा देती है, तो वो सारी एक्टिविटीज गलत हैं। सही और गलत को मापने का माध्यम, मतलब कैसे मापा जाएगा, ये उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म डॉक्ट्राइन के, वो हम बताएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटर्मिनिस्टिक मीन्स ये प्रिंसिपल हमारे एस्पेक्ट एक्टिविटी को कवर करती है। हमारी जितने भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ये डिटरमाइन करती है, कवर करती है। सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंसलिस्ट मीन्स हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रिजल्ट के ऊपर केंद्रित होता है। कंसेकेंट रिजल्ट पर हम फोकस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर झूठ बोलने से कुछ अच्छा होता है तो झूठ बोलना गलत नहीं है, ये यूटिलिटेरियंस कहते हैं। थर्ड इज क्वांटिफाइबल या क्वांटिफिएबल मीन्स प्लेजर एंड पेन उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसी के लिए वो फेलिसिटिक कैलकुलस नाम का एक यंत्र की बात करते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेजर्स एंड पेन थ्योरी। तो इसके लिए पहले टाइप ऑफ सैंक्शंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ सैंक्शन, इन्होंने 4 टाइप्स के सैंक्शंस बताए। बेंथम्स कॉल द वेरियस काइंड ऑफ प्लेजर्स एंड Bentham calls the various kind of pleasures and pain as sanction and divides them into 4 categories. First is physical sanction, political sanction, moral sanction, and religious sanction. So, what is physical sanction? Pain and pleasure arise due to normal and natural or ordinary course of nature. This is physical sanction. Second is political sanction. Pain and pleasure arise due to an action of the sovereign authority or government. Third, moral sanction. Pain and pleasure is attached to an action by the will of the individual who are not in authority. Four is religious sanction. Means pain and pleasure is attached to an action caused by the supernatural power or a superior invisible being. Then he enumerated 14 simple pleasures। 14 सिंपल प्लेजर्स जो हैं वो है सेंस, वेल्थ, स्किल, एमिटी, गुड नेम, पार, पोइटी, पिटी, बेनोवेलेंस, memory, imagination, expectations, association, and release. There are 12 simple pains: prevention, sense, awkwardness, enmity, ill name, pity, benevolence, malevolence, memory, imagination, expectation, and association. अब जैसे कि पहले हमने वहां बता रखा था कि उन्होंने सुख दुख को मापने का एक यंत्र बताया था, मेजरिंग यूटिलिटी बाय द फेलिसिटिक कैलकुलस। इस यंत्र को हेडोनिस्टिक कैलकुलस भी बोला जाता है। ही वांट्स टू मेजर पेन एंड प्लेजर ऑन द बेसिस ऑफ फेलिसिटिक कैलकुलस। इन कंसीडरिंग whether an action is good, we must consider how much pleasure it would produce along 7 dimensions। 7 dimensions जो बताए हैं वो है intensity, duration, certainty, propensity,
फ्रिक्वेंटिटी और रिमोटनेस, प्योरिटी एंड एक्सटेंट। तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, कंसिडर द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेजर, मीन्स ये जो प्लेजर है वो कितना है, अगर ज्यादा है, कम है या बहुत ज्यादा है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो मान लीजिए किसी का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने पे जो हमारी खुशी होती है उसका लेवल क्या होता है, वो कितनी ज्यादा होती है या कितनी कम होती है, ये इन्होंने इसमें बताया है। सेकंड इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कंसिडर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, कितनी देर के लिए ये खुशी है। एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल देंगे कि मान लीजिए सब लोगों के पास न्यू फोन आता है, उस न्यू फोन के आने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। मतलब उसे रखते भी हैं तो हैंकरचीफ के नीचे रखते हैं आराम से पोंछ पाछ के। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, खुशी तो कम हुई, साथ में फोन का कुछ भी केयर भी नहीं होती है। काउच पे पड़ा है, बेड पे पड़ा है, कोई फिक्र नहीं है। मतलब कहने का मतलब यही है कि उसकी खुशी जो स्टार्टिंग में थी वो बाद में इतनी ज्यादा नहीं रहती है। ड्यूरेशन टाइम के बारे में उन्होंने बताई है। थर्ड इज सर्टेनिटी, किसी एक्टिविटी को करने के बाद हमें उसका प्लेजर होगा या नहीं होगा, ये कितना निश्चित है, कितनी श्योरिटी है। तो इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो पर्सनली मुझे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब ये स्टार्ट करते हैं या एंड तक जाते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं पता होता है कि लास्ट तक वो अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। ये श्योरिटी नहीं रहती है कि वो अच्छे बनने पर खुशी होगी भी या नहीं। तो ये इसी चीज को बताता है, सर्टेनिटी। फोर इज प्रोपिंगिटी और रिमोटनेस, दूरी। किसी एक्टिविटी को करने के बाद जो प्लेजर है हम कब महसूस कर पाते हैं, किसी एक्टिविटी करते टाइम करने के बाद या कितने दिनों के बाद उसका मतलब उसकी खुशी बढ़ती है या कम होती है। इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, प्लीज डोंट माइंड, हाँ एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं कि पड़ोस की आंटीज को देख लीजिए, उन्हें गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये डिपेंड करता है कि वो गॉसिप करने से पहले ही बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव कर रही है या गॉसिप करते टाइम बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव कर रही है, या गॉसिप करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिफ्थ इज फ्रिक्वेंटिटी, consider whether it leads to additional pleasure, like एग्जाम क्लियर होने के बाद, मतलब वो जो फ्रिक्वेंटिटी है वो बढ़ती जाती है खुशी उसकी। एग्जाम हुआ, क्लियर हुआ, उसके बाद जॉब जॉब लगी, फिर उसकी खुशी बढ़ती गई, फिर जॉब के बाद सैलरी, उसकी और ज्यादा खुशी बढ़ती गई। ये इस चीज को डिफाइन करता है। सिक्स इज प्योरिटी, कंसिडर वेदर इट इज मिक्सड विद एनी पेन। इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टैटूज बनवाना पसंद है, तो इसमें तो वो दोनों का अनुभव करते हैं, पेन का भी करते हैं, प्लेजर का भी करते हैं। उन्हें पता है कि टैटू बनवाने में पेन होगा, बावजूद उसके उनको बनवाना है क्योंकि उनमें उसकी खुशी है। ये प्योरिटी हो गई। सेवेंथ इज एक्सटेंट, कंसिडर हाउ मेनी पीपल इट अफेक्ट। इसको हम देख सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है, कितने लोगों को मतलब हित हो रहा है, उससे हित हो रहा है। यहाँ पे इगोइज्म की जो धारणा होती है वो गलत साबित होती है कि व्यक्ति जो है वो अहमवादी है। अहमवादी नहीं है, वो दूसरों का हित भी चाहता है। इस एक्सटेंट वाले डायमेंशन को देखें तो अब यहाँ पे इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। एंड एक्शन इज राइट so far as it promotes the greatest amount of happiness, pleasure for the greatest number of people. What is important is the quantity of pleasure or utility. इसमें इन्होंने बोला है कि एक पुष्पिन is a good as poetry. मीन्स पुष्पिन एक बच्चों का खेल है, उस खेल में बच्चा जितना खुश होता है वो उसकी क्वांटिटी उतनी ही है जितना एक पोइट है वो उसे पोइट्री पढ़ने में खुशी मिलती है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने बोला है पुष्पिन is as good as poetry. Next is maximization of pleasure or utility is the only moral goal. The utilitarian think that it is the happiness of everyone that matters. अब कुछ फीचर्स या मेन फीचर्स ऑफ बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म की हम बात करेंगे। तो बेसिकली इट इज अ हेडोनिस्टिक डॉक्ट्राइन, सुखवादी सुखवादी धारणा है ये।
It is the duty of legislators to make legislation to promote maximum happiness to greatest number of people. There are certain measures that legislators have to take to determine the amount of happiness. Mankind is governed by two sovereign masters, pleasure and pain. The computation of pleasure and pain differ from time to time and country to country. Bentham's theory is quantitative in nature. It is objective, variable, comprehensive in nature. It is based on physical factor and और भी कुछ features हैं additional जिनको बोलेंगे all men are seeking happiness. Pleasure is the only thing to be described and valued for its own sake. Reason not gives us the end of life, but prescribes the means by which pleasure can be best attained. 4. An act is right if it produces a sorry, surplus of pleasure over pain, and wrong if it results in more pain than pleasure. The principle of utility or the greatest happiness of the greatest number is the yardstick by which one can measure and evaluate the public policies and legislative enactments of government. And last of all, utilitarianism is practical and inductive. One more important point that Bentham did not originate the theory of utility. उनसे पहले ह्यूम, प्रिस्ले, हेल्वेशियस एंड विकारिया ने दिया था, पर इन सभी लोगों ने प्रैक्टिकली और सिस्टमैटिक वे में इसको नहीं दिया था. बेंथम ने इसको साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकली वे दिया, जिसकी वजह से इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है. इसमें व्हाट बेंथम डिड वाज टू रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस, मेक इट the basic principle of his thinking and build up a system on it. Spinoza and Hume undoubtedly give him the leading clause. Priestley, Essay on Government, suggested the pain and pleasure criterion, and Hutcheson, Morals Philosophy, furnished the phrase the greatest happiness of the greatest number, which arrested public attention. Bentham added the concept of utility as a mathematical computation of satisfaction worked by balancing pain against pleasure and supplied the ideology by which this was expanded into a system of political thought. तो ये था बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म. अब हम बात करेंगे बेंथम के व्यू ऑन स्टील. Bentham's view on state. So he rejected the theory of social contract, and बेंथम से पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही स्टेट ओरिजिन की धारणा प्रचलित थी. स्पेशली रूसो जैसे फिलोसफर्स की फिलोसफी को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है. एंड इसमें अकॉर्डिंग टू बेंथम ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और यदि ऐसा कोई समझौता हुआ भी होता तो प्रेजेंट जो जनरेशन है उसे कोई बांध के नहीं रख सकता था. स्टेट के आदेशों व कानूनों को मानने का रीजन केवल और केवल प्रॉफिट एंड यूटिलिटी है. एंड he supports a democratic state where people enjoy equal rights. It promotes the utility, the greatest happiness of the greatest number. State is a law-making agency. State is sovereign. There is no right of resistance against state. Duty to ensure equality. State की जब हम लोग बात करते हैं, state is sovereign. Then स्टेट सॉवरेन की जब बात करते हैं तो हॉब्स ने भी सॉवरेन को अदेय अविभाज्य बोला है, और बेंथम ने भी इसको हॉब्स की तरह ही इसे जो सॉवरेन है इसे अदेय अविभाज्य की संज्ञा दी है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट was legislation, and that the chief aim of legislation was to remove all the institutional restrictions on the free action of individual. State is a group of individual. ये बेंथम ने बोला है. ये बेंथम के स्टेट के व्यूज थे. अब बेंथम्स व्यू ऑन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बारे में बेंथम क्या व्यूज हैं? He supported representative democracy as the best form of the government. We need a government to caress and force people to do what is good for the entire
society as a whole. The duty of the government is to achieve the greatest happiness of the greatest number. And Bentham maintained that government should not take away, no, sorry, he accepted the division of governments into monarchy, aristocracy, and democracies. He considered the first two of these to be incurably bad, aristocracies being worse than monarchy. The reason is that in both of them, the general interest of the community is liable to be sacrificed at the altar of the sinister interest of the governing classes. They are not in a position to promote the greatest good of the greatest number. इसलिए ये Bentham's view on so he did not believe in concept of natural rights. He rejected the theory of natural right. According to him, rights are sanctioned by law of the state. Rights and duties are correlated. Sanction is denied by the sovereign. So the rights हमने individuals के पास वो सब स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे और लीगल फॉर्म में दिए जाएंगे. नेचुरल राइट नाम का कोई भी राइट नहीं होता है. इसको उन्होंने टोटली नॉनसेंस बोला है नेचुरल राइट को. एंड Bentham's view on education. Bentham ने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी रिफॉर्म्स किए. ही बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू रिफॉर्म इन एनी फील्ड. ही ऑल्सो बिलीव दैट मनुष्य जाति को एजुकेशन के थ्रू ही सुधारा जा सकता है, जिसके लिए ही सजेस्टेड टू मेथड्स ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट इज़ फॉर हायर एंड अपर क्लास एंड सेकेंड इज़ फॉर लोअर एंड पुअर क्लास. तो अपर क्लास की एजुकेशन के लिए सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये बेंथम बात करते हैं. इसके बाद ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े टफ़ हैं उन्हें बाद में पढ़ाया जाना चाहिए तथा जो सब्जेक्ट थोड़े इजी हैं उन्हें पहले पढ़ाया जाना चाहिए. बेंथम मॉनिटर सिस्टम का भी समर्थन करते हैं, जिसमें हायर क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करेंगे. साथ ही बेंथम ने ग्रीक, लैटिन के अलावा भी कई सब्जेक्ट्स को शामिल करने की बात कही है, जिसमें वो मॉडर्न एंड डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस एंड साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाने की बात करते हैं. अब हम बात करेंगे बेंथम्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की. So one of the major goals of Bentham's life was to reform in the legal system, and as we know he was an advocate of legal reforms, जिनका उद्देश्य थियोरेटिकल मेथड एंड यूटिलिटी प्रिंसिपल के आधार पर लॉ की फील्ड में उन सभी ओल्ड बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस को रिमूव करना था जो कि कॉमन पीपल्स के प्रोग्रेस के लिए ऑब्स्टेकल्स थे. एंड इन हिज व्यू द मेजर फॉल्ट या डिफेक्ट ऑफ द लॉ वर एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, इनएक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे शब्दों के प्रयोग थे. बेंथम ने लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ, सेकंड सिविल लॉ, थर्ड criminal law and fourth is international law. He proposed a system of healthy legislation and a separate jurisprudence from politics की बात करने वाले बेंथम पहले फिलोसफर हैं जिसके लिए आज भी लॉ की जब बात होती है तो बेंथम का नाम सामने आता है. इसके अलावा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेंथम ने कई और रिफॉर्म्स किए लाइक क्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, बैंक्स फॉर द पुअर, recall of public official, training for poor children, improvement of prisons, a scheme for national education. इसके अलावा universal manhood suffrage, annual parliament and last vote by ballot. ये थे बेंथम के लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. अब हम बात करेंगे उनके कुछ अदर एस्पेक्ट्स की लाइक ऑन प्रॉपर्टी, private property and on women and gender equality. So on private property, Bentham favors the institution of private property. In place, he said that the happiness of an individual consisted in 4 things: subsistence, abundance, equality, and security. Under security, he comprised liberties, civil and political, protection of the person and property of the individual. And he favors the idea of free trade as proposed by Adam Smith.
He holds that states should not take over any property without payment of proper compensation. अब हम बात करेंगे women and gender equality की. तो Bentham favors equality of men and women. He urges for women right to vote and right to participate in government. In other, he was not opposed to women franchise but held that the time for it had not arrived. इसकी कोई डिमांड नहीं थी उस वक्त, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी. And he favors the education for women, for which he proposed a new curriculum called Christomathia. Christomathia जो है वो बेंथम की एक पुस्तक है जो कि 1816 में पब्लिश्ड हुई. इस बुक में बेंथम ने वुमेंस के एजुकेशन का विचार रखा है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम ने वुमेंस की इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी की वो बात करते हैं. अब हम बात करेंगे बेंथम के क्रिटिकल एनालिसिस की. हाई है, लो है, कम है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस. देन लास्टली कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म. एज वी नो, आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट. इन्होंने स्टेट के जो कार्य हैं, वर्क हैं, उसको पॉजिटिव वे में लिया है और एक्चुअल में जो होना चाहिए, जो इस टाइम है, उन्होंने उन सभी की बात करी है, स्टेट के जो वर्क्स होने चाहिए. देन Bentham was the real originator of analytical jurisprudence. He he insisted on the separation of law from morality, and he supported the theory of individualism, recommended republican form of government. Bentham as a legal and political reformer, जो पहले ही हम बता चुके हैं उन्होंने क्या क्या लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए. तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक. जेरेमी बेंथम, उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी थ्योरीज, उनके व्यूज जो मैंने कोशिश करी है आप लोगों के सामने रखने की. बाकी थैंक यू सो मच. बाकी किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई, देन स्टेज इज ऑल योर्स. Thank you, Anjali. Thank you for delivering such a comprehensive lecture on Jeremy Bentham. You really explained all the details of his philosophy by citing proper examples. Now we have done with the lecture part. We will proceed with the question sessions. Anyone has any queries, doubt, or you want to comment on Bentham, you all are welcome. Anyone, any questions? Good evening, everyone. Congratulations, ma'am. Anjali. Yeah, congratulations, Anjali, for giving us a comprehensive lecture. Thank you, You ma'am. have tried to incorporate all the points. That's wonderful. I would like to say something on Bentham. Yes, ma'am. For example, ह्यूमन नेचर को बेंथम ने बोला है कि वो पेन और प्लेजर से डिस्कस करता है. फॉर मी ह्यूमन नेचर इज नॉट एज सिंपल, rather it is so complex. Okay, for example, there are a lot of times in life where we start with pain and end with pleasure. That you also mentioned about tattoo making. Okay, tattoo making तो एक choice की बात है कि हम बनवाएं ना बनवाएं. But for example, delivery of a child, it gives you a lot of pain and then pleasure. Yes, ma'am. So, okay. So my first point is that it is इतना simplified human nature psychology नहीं है जितना बेंथम ने कहा है. ठीक. Yes, ma'am. Second point is that utility के principle से सिर्फ govern होना is like enhancing your animal instinct. Rather, with the rising human consciousness, we need to think about the worth of the action. Whatever action we are doing as human being, it has a worth or not. It's over excessive focus on utility has created a lot of problem in society. Okay. Yes, Then ma'am. about Bentham is so undemocratic. On education he is undemocratic. ऐसा नहीं है कि पुअर के लिए एक एजुकेशन सिस्टम और रिच के लिए एक एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है.
ठीक है, एज वी नो कि स्ट्रीट लाइट वाले बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं रादर देन कि जो इसी में बैठ के करें। ठीक, सो एजुकेशन हैज नथिंग, एजुकेशन तो तपने का नाम है, किताबें आप खरीद सकते हैं लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही है। तो इज क्वाइट अनडेमोक्रेटिक अगर हम उसकी बात करें तो। देन पूरा जो ये ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का ये जो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये तो बहुत बड़ा अपने आप पे क्रिटिक को खड़ा है। उसके आगे ही पूरी 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी की फिलोसफी खड़ी है सोशल जस्टिस की मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की, और मॉरल ड्यूटी की, द कंसेप्ट ऑफ मॉरल ड्यूटी, द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, द वॉइस ऑफ अनस्पोकन, सबाल्टर्न स्टडीज, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी इंडियन कल्चर में अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का हित, जो जॉन रॉल्स बोलता है कि लीस्ट ऑफ क्लास का वेलफेयर, तो ये तो ये जो एक मेजोरिटी 19th-18th सेंचुरी में यूटिलिटेरियनिज्म का ये कॉन्सेप्ट चला, उसके वो क्वाइट अनडेमोक्रेटिक है, वो सिर्फ मेन स्ट्रीम को फोकस कर रहा है, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं और वो 20th सेंचुरी के सारे आंदोलनों में हमें देखने को मिले हैं। You have said about that. Then next point is you talked about women कि women की इक्वालिटी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त की जो इक्वालिटी थी वो फॉर्मल इक्वालिटी थी, वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात सोची भी नहीं बेंथम ने। जैसे वो क्वांटिटेटिव प्लेजर पे अटक गए, क्वालिटेटिव प्लेजर तक ना पहुंच सके, और जो अलग से एजुकेशन, और वो he was not like J.S. Mill, who has given a lot of right to women. For example, I would like to quote Bentham: "A woman's affection does not embrace the welfare of her country, much less all humankind, but is limited to her own children." Okay, so you revise your views on men and women equality. Bentham's view on men and women equality. Thank you all. थैंक यू सो मच मैम, एक एक चीज़ों को डिटेल से बताने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए। इट इज रियली वेरी वंडरफुल। Yeah. You can add on. It's a learning process. ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। Yeah. Thank you, Bharti ma'am. Anyone else want to say anything or comment your opinion or any doubt you want to ask? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लेक्चर था ये, और लेक्चर अच्छा या बुरा नहीं होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक है कि इंफॉर्मेटिव, दूसरी चीज़ है एनालिटिकल, और ये दोनों चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि कवर अप कर लें। और जो बेंथम का पोजीशनिंग है, बेंथम का जो कॉन्टेक्स्ट है, और जिस तरीके से भारती मैम ने पूरी तरीके से जो बेंथम की जो पोजीशनिंग है और उसमें जो उसके क्रिटिक हैं, उन सारी चीज़ को एक साथ रखा है, ये सभी के लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि इसको इन्वाइट करें अपने साथ। दूसरी बात ये है कि जो बेंथमाइट पोजीशन है उपयोगितावाद की, उसको रिजेक्ट किया गया 1970 ऑनवर्ड, या उसके बाद भी इवन J.S. मिल ने भी उसको रिजेक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेंथम का कैलकुलस है या बेंथम का जो यूटिलिटी है, उसको अगर हम सिर्फ देखें तो उसको देख ऐसा नहीं लगता है कि उसने इंडिविजुअल को एक इकोनॉमिक मैन की तरह देखा है। इंडिविजुअल माइनस मोरालिटी, द सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहा है। बस मैं इसमें कंफर्मेशन चाहता हूँ अंजलि से कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तुम्हें ऐसा लगता है किसी को सिर्फ इकोनॉमिक मैन की तरफ लीड कर रहा है वो? अंजलि डिस्कनेक्ट हो गई है आई थिंक। Yes, sir. Anjali is not there right now. Maybe network problems. ओके, अदर फैकल्टी, हेलो, आई एम ऑडिबल? मेंबर हैं। हाँ विकास, आप बताएं जो मैं कह रहा हूँ, आप कितना सहमत हैं इस बात से? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अंजलि को तो कांग्रेचुलेशन, ठीक है, कि बेंथम को उसने एक चैलेंजिंग फिलोसफर को उसने डिलीवर किया है। जहां तक भैया सर आपकी बात है कि बेंथम की जो बेंथमाइट पोजीशन है और वो और उसका जो फैलेसिफिक कैलकुलस का जो मेथड है,
उसमें वो एक तरीके से इकोनॉमिक मैन की तरह वो बिहेव कर रहा है, या उसकी तरह उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी तरीके का है। मेरा जहां तक मानना है कि इकोनॉमिक मैन की बात तो ठीक है, वो इस बात को वो स्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इकोनॉमिक मैन के साथ साथ वो एक मैकेनिस्टिक फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। जब वो इस बात को कह रहा है कि कुछ जो सुख हैं कुछ दुख के साथ आपस में कट जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा वही यूटिलिटी होगी, दैट मीन्स कि एक मैकेनिकल थियरी वहां पे वो जनरेट कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को यही वो सिचुएशन थी जिसको लेकर जेएस मिल को प्रॉब्लम हुई, और जेएस मिल को लगा कि ये जो है बिल्कुल जो है सस्टेन नहीं की जा सकती है, और इसीलिए वो इसमें रिफॉर्म जो है ले आने की बात करते हैं। ठीक है, जो कि आगे चलकर जो है हम जेएस मिल की फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि जो है कि उपयोगितावाद में संशोधन का और मोरल पर्सपेक्टिव को वो ले आकर वहां पे इन्वॉल्व करते हैं या इंडक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है बेंथम के साथ में कि वो पूरी तरीके से एक मैकेनिस्टिक फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है, और मैकेनिस्टिक फॉर्मेट में जब भी कोई थिंकर आगे बढ़ता है तो वो इन सोशल साइंसेज में जब हम ह्यूमन बिहेवियर पे बात कर रहे हैं तो वहां तो जस्टिफाई नहीं हो सकता। यही गलती आगे चलकर जो है डेविड स्टर्न ने की, जब वो फैक्चुअल जजमेंट के आधार पर या साइंटिफिक मेथड के आधार पर ह्यूमन बिहेवियर को जज करने की बात कर रहे थे। यही स्थिति हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है टेलर ने की, वही बात जो है हर्बर्ट साइमन आगे चल के गलती करते हैं। तो ये एक जो है मैकेनिस्टिक थियरी का पूरा एक जो है फ्लो चला, जो कि पूरी तरीके से जो है सोशल साइंसेस में और स्पेसिफिकली हम अगर पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे तो वहां पर ये फेल होता हुआ पूरा तरीके से पूरा डिबेट ही फेल होता हुआ दिख रहा है। रीजन उसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक मैकेनिस्टिक फॉर्म में आगे नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ वैल्यू जजमेंट की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और यह वैल्यू जजमेंट को हम अगर जेएस मिल के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो मोरल एक एस्पेक्ट को हमको ले आना होगा, तभी जाके वो जस्टिफाइड होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसको लेकर जब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे भारती मैडम ने बहुत ही उसको कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एक्सप्लेन किया कि जॉन रॉल्स को भी उस डिबेट में शामिल किया, क्योंकि वो भी थियरी जब जस्टिस की थियरी को कंस्ट्रक्ट करता है तो उस उपयोगितावाद का विकल्प देने की वो बात करता है, लेकिन वो उसी लिबरल फ्रेमवर्क में देने की बात कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये हो जा रही है कि जब वो उपयोगितावाद की बात कर रहा है कि हम जो है जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में कि मान लीजिए कि कुछ लोगों के हितों के लिए हम कुछ लोगों की बलि दे दें, ये किस तरीके का जस्टिस होगा अगर हम वह बेंथमाइट पोजीशन को ही एक्सेप्ट कर ले? ये तो पूरी तरीके से जो है इमोरल एक एक्टिविटी हो गई, ये इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मान लीजिए कि जो है कि एक मोरल कंडीशन है, हम मैं इसको इस पर एक उनका माइकल सैंडल का एक लेक्चर है लेक्चर सीरीज में आप सुनेंगे, उन्होंने इसको मोरल नोशन ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में डील किया है। वे इसमें मैं थोड़ा सा उनका एग्जांपल यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या सिचुएशन है, मान लीजिए कि दो रेलवे ट्रैक हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ओके, दो रेलवे ट्रैक्स हैं, और दो रेलवे जो ट्रैक्स हैं उसमें से जो है दोनों पे ट्रेन आ रही है। अब वो जब ट्रेन आ रही है तो एक रेलवे ट्रैक पे 15 लोग काम कर रहे हैं, दूसरे रेलवे ट्रैक पे 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमको पता है कि एक पे 5 लोग हैं, एक पे 15 लोग हैं। अब क्या है कि हमको वो जो ट्रेन आ रही है वो 15 जिस पे लोग काम कर रहे हैं उस पे आ रही है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उस ट्रेन को मतलब उसका ट्रैक शिफ्ट करके 5 लोगों के ट्रैक पे ले जाएंगे। अब हमारे पास ये विकल्प तो है, लेकिन इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या? व्हाट इज द मोरल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस हियर? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए, या एक पूरा सोशल साइंसेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, इसका उत्तर न बेंथम दे पाया, ना उत्तर इसका जॉन रॉस दे पाए, ना उसके आगे का डिबेट इस उत्तर को दे, और ये अभी भी जो है उसी तरीके से फ्लोरिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप सभी फैकल्टी मेंबर्स के सामने, स्कॉलर्स के सामने भी रखना चाहता हूँ। ऐसी कंडीशन में जब हम खाली सिर्फ यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि वो उन 15 लोगों को हमें बचा लेना चाहिए, 5 लोगों को मर जाने देना चाहिए। यही यूटिलिटी का सिद्धांत हुआ ना। तो हम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? मेरा ये एक क्वेश्चन भी है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर कोई भी इस पे अपना रजनीकांत सर, भारती मैम या अदर कोई भी इस पे कुछ अपना इनपुट देना चाहे तो प्लीज।
हेलो, am I audible? ये Am I सर audible? आपकी आवाज आ हेलो, रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके। तो मेरी बात क्लियर जी हुई? सर, जी सर, डिस्कनेक्ट तो जी नहीं सर। हुआ? अब नो सर, नो सर, सर हाँ, आ गए हैं सर। ओके, अभी यस, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, ओके। तो पांडे सर, मेरी बात में कन्वे हो गई है? अगर आप कुछ इनपुट इस पे इनपुट देना चाहें। सर मुझे लग रहा है सर को आवाज नहीं आ रही है, उनको डिस्कनेक्ट है अभी भी। हाँ, रंजी सर, वो आप हैं क्लास में? रितेश यहाँ पे हैं। रितेश, आई एम ऑडिबल टू यू? यस भैया। हाँ, हाँ, रितेश, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? उतना आइडिया नहीं है भैया अभी। ओके, ओके, नो इशू, नो इशू। हाँ, पांडे सर, आप इस पे कुछ अपना इनपुट रखना चाहें तो प्लीज। हाँ शुक्ला जी। हाँ, मेरी आवाज आपको क्लियर आई थी कि नहीं? डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए अभी तो बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो बोलें इस पे, जैसे मोहित हाँ, मोहित हैं, हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी सोनिया हैं, कुशवाहा मैम हैं। वाइब्रेंट। यस, यस, यस। सब लोग अपनी अपनी बात जरूर रखें ताकि जो डिस्कोर्स है हम लोग उसको और बेहतर कर सकें। हाँ, इस पे कोई अपना इनपुट रखना चाहे तो प्लीज। जी जी सर, बिल्कुल। जो सर आप विकास सर आपने जो बात कही वो बिल्कुल हाँ, ऑन द स्पॉट है सर। आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की यहाँ पे कि ये जो मॉरल डिलेमा रहता है जस्टिस की थ्योरीज में कि अगर हम यूटिलिटेरियन थ्योरीज को फॉलो करते हैं तो हमें ये जरूर दिखाई देता है कि कुछ लोगों की सिक्योरिटी या कुछ लोगों के प्लेजर के लिए हमें कुछ दूसरे कम संख्या के लोगों का प्लेजर या उनका राइट या उनकी सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। बिकॉज यूटिलिटेरियनिज्म मेजोरिटेरियनिज्म को जस्टिफाई करता है। वो कैलकुलेट करता है और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि ज्यादा लोगों का सुख ज्यादा मायने रखता है बजाय कम लोगों के दुख के। ये तो बेंथम की थ्योरी में जरूर एक मैनिफेस्ट कमी थी जिसको उन्हीं के स्टूडेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफी ब्लेटेंट तरीके से डिनाई भी किया, जिन्होंने बताया कि उसमें क्या कमी थी। बट सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी, और जो अंजलि हैं अगर वो सुन रही हैं तो उनसे भी, कि दो तरह की जस्टिस की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। एक जस्टिस की थ्योरी को जब कोई भी थिंकर रियलिटी में ग्राउंड कर एक ग्राउंडेड जस्टिस की थ्योरी कोई थिंकर देने की कोशिश करता है जो आज की दुनिया की जो समाज की सच्चाई के करीब होती है, तो वो जस्टिस की थ्योरी इनएविटेबली मोरालिटी को सैक्रिफाइस कर देती है। कहीं ना कहीं उसमें मोरालिटी किनारे हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि अगर अगर प्रैग्मेटिक जस्टिस की थ्योरी देने की कोशिश की गई है तो वो उसमें मोरालिटी की जगह नहीं रहती है। और अगर हम जस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर द सेक ऑफ थ्योरी लिखते हैं, एक आइडियल थ्योरी लिखते हैं, तो वो हमें सही भले ही लगती हो, वो हमारे इंट्यूशन को, वो हमारे अंतःकरण को अच्छी भले लगती हो, पर वो आज की समाज की सच्चाई से, दुनिया की सच्चाई से दूर हो जाती है। ना कि सिर्फ आज की समाज से, बल्कि समाज जब से बना है तब से। तो ये बात, ये जो क्वेश्चन आपने कहा था जो सैंडल की केस स्टडी में था कि अगर एक ट्रैक पे 15 लोग हैं और एक पे 5 लोग हैं, तो भले ही यूटिलिटेरियनिज्म इस बात को जस्टिफाई कर दे कि 15 लोगों की जान बचा ली जाए, पर अगर हम कांटियनिज्म या फिर जॉन रॉल्स की थ्योरी या फिर प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस अप्लाई करते हैं तो उसमें भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं मिलता है। और वहीं पे अगर हम मैकियावेली को लेते हैं या फिर यूटिलिटेरिज्म को लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, भले ही वो अनएथिकल हों। ये मेरा स्टैंड है सर। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये कंडीशन है। देखिए, हमेशा से जो है जस्टिस का जब थियरी हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके दो डोमेन हमको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हैं पता है। एक है प्रोसीजरल नोशन ऑफ जस्टिस और दूसरा सब्सटेंटिव नोशन ऑफ जस्टिस। देखिए क्या है कि जब भी हम इस पूरे एस्पेक्ट को खोल कर देखते हैं या जस्टिस की थियरी के बारे में कुछ भी कहते हैं या कुछ भी उस पर लिखते हैं या पढ़ते हैं,
तो इन दोनों ही डोमेन को हमें ध्यान में रखता है। देखिए क्या है, प्रोसीजरल नोशन ऑफ जस्टिस पे जब हम बात करना शुरू करते हैं तो वहां का जो आर्गुमेंट है वो लिबरल पैटर्न पे सेट होता है, ठीक है, वो लिबरल पैराडाइम उसको जो है पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है। और अब हम सभी जानते हैं कि लिबरल पैटर्न जब सेट करेगा तो उसके अपने मायने हैं, उसके अपने कंस्ट्रक्शन है जिसके आधार पर वो जो है उसको उस पूरी थियरी को बिल्ड करता है। वहां पे मामला सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का है। लिबरल पैटर्न या जो है जो प्रोसीजरल नोशन ऑफ जस्टिस है वो कभी भी मोरल ग्राउंड को सेटिस्फाई नहीं करता है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि उसका जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर कट है। वो कहता है हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को, तो हमने जो है बराबर बराबर लोगों में बांट दिया। हम इस बात को देखने की जद्दोजहद भी नहीं कर रहे हैं कि उसमें कौन व्यक्ति ज्यादा क्षमतावान है कौन नहीं क्षमतावान है, हमने सबको एक समान ट्रीट करना शुरू किया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है उसको लेकर। अब देखिए एक बार तो अपने इसी कंडीशन को लेकर हम कहते हैं कि वो दे डोंट टॉक अबाउट द परमानेंट सोल्यूशन, वो परमानेंट सोल्यूशन के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन इसी का आप जब भी देखिए दूसरे डोमेन में आप शिफ्ट करेंगे जिसको हम सब्सटेंटिव नोशन ऑफ जस्टिस कहते हैं, वो सोशलिस्ट पैराडाइम का डोमेन है या सोशलिस्ट पैराडाइम का जो है वो एस्पेक्ट है। वहां पे क्या मामला चल रहा है कि हमें बेसिकली और उनका ये ध्यान रखिए उनका कोर क्या है। उसका कोर ये है कि हमको बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, एक इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको वो कहते हैं, ठीक है। एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहा है, दूसरा डोमेन रीडिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहा है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके पास कम है उसको हम ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जस्टिफाई वहां से होती है थियरी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर डेवलपमेंटल थ्योरी आगे बढ़ती हैं, उसके बाद हम अमर्त्य सेन को देखते हैं, वो कैपेबिलिटी पे बात करते हैं। लेकिन कहने का एक ओवरऑल हम एक अपना व्यू अगर रखें तो जो ये मोरल ग्राउंड है जस्टिस की थियरी का वो स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। ये अभी तक इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका है और इस पर बहुत सारे लोगों ने कहने की कोशिश की है। डेविड मिलर ने भी कहा, अमर्त्य सेन ने भी कहा, उनका एक कंडीशन अलग है। मार्क्सिस्ट जितने भी हैं या नियो मार्क्सिस्ट जितने हैं वो भी इस पर अपनी अपनी तरह की राय रखते हैं, लेकिन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जस्टिस की थियरी के साथ। और आई थिंक दैट कि और वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम सोशल साइंस में कभी भी फाइनल जजमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, हम किसी एक जनरल थियरी की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। वी कैन टॉक अबाउट दिस, वी कैन डिस्कस, ठीक है, वी कैन डिबेट ऑन दिस। अब सबके अलग अलग विषय आर्गूमेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक दैट। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि मेरे लिए भी वो इतना ही चैलेंजिंग है जितना और सभी के लिए है। सो इट्स अ वेरी गुड इनपुट फ्रॉम द मोहित एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स आल्सो कैन गिव देयर इनपुट on this. Thank you very much, Mohit and Shukla ji, for brilliant inputs on the justice. There are two alternative models of the justice we find in the discourse. The first one is the graded justice, and the graded justice is very familiar. We all are very familiar. It is, exists in our constitution. हमने क्या किया, हमने ग्रेडेड जस्टिस को अपनाया है, जिसमें हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज, सेगमेंट वाइज, हु नीड्स फर्स्ट। इसमें आप देखेंगे 2007 में ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल छपा था अमरनाथ मोहंती का अफर्मेटिव एक्शन पे। ही जस्टिफाई द पास्ट इनजस्टिस के ग्राउंड पे उन्होंने जस्टिस को डिराइव किया है कि किस तरीके से जो पास्ट इनजस्टिस है उसको हम एक तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं आज के अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से। तो जो ग्रेडेड जस्टिस है कि हु इज मोस्ट वल्नरेबल, तो जो मोस्ट वल्नरेबल है उनको ब्रिंग इनटू द डोमेन ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16(4) देख सकते हैं आप, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करता है। नॉट नेसेसरी कि जो हम कह रहे हो वो फाइनल ट्रूथ हो, बट एक अलग डायमेंशन में हम इसको देख सकते हैं। सेकेंड जो अल्टरनेटिव ऑफ जस्टिस का डिस्कोर्स है वो दिखाई देता है नैन्सी फ्रेजर के रूप में, जब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था, पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो उन्होंने क्या किया, शी ब्रिंग्स redistribution and recognition in a same pattern as well as the participation। उस बात में ये बात निकल के आती है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न है जो कि बात करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो रिसोर्सेज है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमॉन्ग द ग्रुप्स। सिमिलरली जो रिकॉग्निशन है जो कि एक लिबरल फिनोमिना में चीजें आई,
क्योंकि आइडेंटिटी के ग्राउंड पे भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनजस्टिस को फेस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसके पास पार्टिसिपेशन, स्टिल दे आर नॉट अवेलिंग द पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने भी जस्टिस को देखने की कोशिश करी है। बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जस्टिस का जो कनोटेशन है, जस्टिस का जो कंसेप्ट है, उसमें आप लेके चलते किसे हैं, इंडिविजुअल को या ग्रुप को। और इंडिविजुअल को भी आप एटमिस्टिकली लेते हैं या इम्बेडेड इन द कल्चरल जो सेगमेंटेशन है उसके रूप में देखते हैं। तो अभी सभी लोग, हम सभी उसी यात्रा में हैं कि जस्टिस के जो तमाम डिस्कोर्सेज हैं उसको देखते हुए यह ध्यान में रखना कि हम इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम मल्टीपल अप्रोच ऑफ जस्टिस पे काम करने की सोचें या उस पर डिस्कोर्स करने की कोशिश करें तो शायद हम एक बेटर सोसाइटी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा टेक बस इतना ही है। तो भैया सर इसमें क्या हम इस बात या इस टर्म को क्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ड्वर्किन ने कहा कि जो है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का इधर उसने बात कर रहा है, ठीक है, कि हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, किसी इक्वालिटी के किसी एक एस्पेक्ट को लेकर हम बात नहीं कर सकते। तो क्या सिमिलरिटीज है जस्टिस की थियरी में, कॉम्प्लेक्स जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों को उस दिशा में सोचना चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि एक जो ग्रेडेड जस्टिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से हम देख रहे हैं नैन्सी फ्रेजर को। तो क्यों ना हम एक जो कॉम्प्लेक्स जस्टिस के तरफ बढ़ें और उस डिस्कोर्स की तरफ जाएं कि भाई हमारे पास दिस आर इशू, इंडिविजुअल से लेके, ग्रुप से लेके, और उसके बाद हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश करें जिसमें हम इंडिविजुअल के साथ साथ जो ग्रुप्स हैं उनको भी जस्टिस की तरफ लेके जा सके। और ये एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, एक अच्छा काम हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो रिसर्च करेंगे आने वाले समय में, तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ, यस मोहित। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, पहली बात सर थोड़ा शायद करेक्शन है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात डोरकिन ने माइकल वाल्जर ने की है शायद। और दूसरी बात जी, और दूसरी बात सर ये कि अभी भारती मैम थी हम लोगों के साथ में, तो वो बता रही थी कि ह्यूमन नेचर के बारे में जो बेंथम की अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने बताया कि ह्यूमन नेचर इज अ काइंड ऑफ स्लेव टू प्लेजर एंड पेन, एंड जो हम लोग वो बात कर रहे हैं इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था कि चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल दिया था, वेरियस अदर थिंग्स का। उन्होंने कहा था कि जो पेन से शुरू होती हैं दे एंड अप इन प्लेजर। बट उसमें मेरा इनपुट ये होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं लाइफ इन जनरल, जबकि एग्जांपल्स हमको मिल जाते हैं जो पेन होती है, बट हमारी जो आईसाइट होती है वो उसके बाद मिलने वाले रिजल्ट पे होती है। तो बेंथम को आई थिंक बेंथम के दूसरे क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं, बट प्लेजर एंड पेन थ्योरी को अगर हमें डिनाई करना है, अगर हमें उसको क्रिटिसाइज करना है, हम थोड़ा ज्यादा डिफरेंसिव होना पड़ेगा, बिकॉज जो इसका बहुत बड़ा है। आई थिंक बेंथम पूरी तरह सही नहीं है, बहुत हद तक सही दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इस सोशल साइंसेस में हम सभी लोग ये बात कहते हैं कि हम कभी भी फाइनल जजमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते, इंडिविजुअल मैकेनिस्टिक नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है कि हम इंडिविजुअल को मैकेनिस्टिक मानकर उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी जो है साइंटिफिक मेथड्स, एम्पिरिकल मेथड, डेटा एनालिसिस के आधार पर हम जजमेंट की तरफ करने की तरफ या प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ते, पॉसिबल ही नहीं। इसी तरीके से जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि हम तो बात तो ह्यूमन बिहेवियर की कर रहे हैं या ह्यूमन के ही बारे में कर रहे हैं, तो वहां पर भी वही सिचुएशन अप्लाई हो जाती है। तो ये एक जो है फ्लोर ओपन है, और इसमें बहुत सारे लोगों के आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का कोई फाइनल जजमेंट नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है और कॉम्प्लेक्स